We are good to start. Start, I think it's 8:33. We'll wait for 2 more minutes and then we'll start. Right. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to yet another webinar on Thinkful Thursday. My name is Kaleem Syed and I'm the founder of ClimbWin. For those who are coming for the first time, ClimbWin is a company wherein we help you to find a better you, and we do normally every Thursday at 8:30 p.m. Webinars on a topic which is currently relevant and which can help you to become better you. And today's topic is emotional distress. Hope you all have gone through with the flyer we have circulated. If not, the topic for today is emotional distress. Last few weeks before, we talked about why we couldn't able to make the resolutions which we promised ourselves at the beginning of the year. There are some internal challenges and external challenges. You can go on our YouTube channel and watch that. And last week we discussed about the goals for 2023. What are the strategies? How to with the strategies, how you can help to achieve your goals. There is a grow strategy, smart strategies there. Okay, you can go through on our ClimbWin YouTube channel. And today we are talking about yet another what I would call trending topic called emotional distress. थोड़ा सा हम हिंदी में बात करेंगे और थोड़ी सी अंग्रेजी में, दोनों का मिश्रण इंशाल्लाह we will have it. So बिस्मिल्लाह करते हैं. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Today's topic is emotional distress. First of all, let us understand what do you mean by इमोशन, और इमोशन को कहते क्या है. एक सिंपल आसान साधारण लैंग्वेज में इसे कहते हैं कि फीलिंग्स और जज्बात जिसे कहते हैं. और ये किस में होते हैं? ये तमाम ह्यूमन बीइंग्स, इफ इट इज नॉट ह्यूमन बीइंग्स, all living beings have emotion. Even animals have their emotions, and they express to their family members, I would say. And we human beings, we express our feelings towards each other. Feelings can be of a very different type, and how these emotions can help us. तो पहले मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात करता हूँ. एक random test why emotions are important, or rather than क्यों हमें इमोशंस के बारे में जानना चाहिए, और how this emotion can help us to become better you. एक मैं छोटा सा सवाल ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ड्रिंकिंग पेप्सी, कोला और एनी fizzy drink is bad for health? How many of you know? If I ask you to raise your hand, everybody will say that yes, we know that drinking fizzy drinks is harmful to us, to the health. Yet kapsa, mandi, etc., etc., whenever you have it, okay, after that you still drink it, in spite of you knowing it is not good for health, but still you do it. Why? Because that emotional trigger that generates in your mind ask you to drink fizzy drink. So rationally, if you think that we should not drink it because that is harmful to health, but yet we do it. Okay, दावत में जाते हैं आप, आपको पता है ज्यादा खाना not good for health, but still you eat it. Why? Because that is how emotions is being attached. Now emotions can be of many types. Before we go on to the types, let us first understand emotions. We a human being are emotional being. ठीक है, अब इमोशंस क्या होते हैं, थोड़ा सा हिंदी में, थोड़ा सा इंग्लिश में. Happiness, sadness, love, surprise, anger, anxious, all these stuff. There are nearly 21
टाइप्स ऑफ इमोशंस, और हम सारे लोग इमोशनली ड्रिवन इमोशनल बीइंग है। हम एक दूसरे से अटैच्ड है बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस, नॉट बिकॉज वी बीइंग रैशनल। सो इमोशंस और क्या होते हैं हम आगे आगे बात करेंगे। नाउ व्हेन आई से डिस्ट्रेस मीन्स anything that is painful, that is that you have trouble in, that is you are in problem, that is called distress. So now emotional distress, first emotions are the feelings, for example happiness, sad, anger, etc etc, and distress is जिसको आपने रोक रखा है। distress is you are in trouble, you are in problem. For example, you can be in financial distress, you can be in physical distress, you can be in relationship distress, or you can be an emotional distress, distressful person, or you are in a state of emotional distress। ऐसी चीज जो आपको सता रही है इमोशनल के हवालों से, this is what we are going to discuss. So now, as you know, emotional and distress, इमोशनली अगर कोई परेशान है तो उसको क्या करना चाहिए, और इमोशनल परेशानी से क्या नुकसान होता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सो इमोशंस आर बेसिकली 21 types, as I said, you can go onto the internet and check which is your strong emotion. Okay, which is, I think there is some technical issue, just give me 1 second. I think the voice is not coming up. Just give me 1 second. Um, am I audible? Am I audible? Um, our technical team got some issues here. They're saying the audience are saying that voice is not good. No voice. I think clear. I'm getting messages clear. Okay, just give me 1 second. Yeah, I'll just. ठीक है। लॉ जो होता है ना, लॉ मीन्स कानून। लॉ विल नॉट चेंज फॉर एनीवन। Video is not coming. No, I think it's coming. Can see the video. Can you see? Shall I close this? Okay. Yeah. Now it is okay. All clear. All right. Some technical issues. Okay. थोड़ा सा हम इमोशनल डिस्ट्रेस से हट के बात करेंगे 1-2 मिनट के लिए। लॉ जो होता है, LAW लॉ, ये दुनिया का कानून है और ये सबके लिए सेम है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रिलीजन। ये लॉ के बारे में मैं कभी फिर से और बताऊंगा कि व्हाट आर द लॉस ऑफ सक्सेस एक्सेट्रा, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ ग्रोथ एक्सेट्रा। एक छोटा सा लॉ है, मर्फीज लॉ, जो मैं अक्सर कहता हूँ। मर्फीज लॉ सेज दैट एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो टेक्निकली ऐसा है कि कितना भी टेस्ट करो, सब sometime may go wrong. So this is how it is. Now, if something can go wrong, it will go wrong. That is what Murphy's law is. Okay, like for example, your mobile can go wrong. That is not built for lasting till Qiyamah. Okay, that can go wrong. So it will go wrong any fine day. So this is how
the world has been created. Now, coming back to our topic with the same thing, emotions are something that you attach to it, be it in the past or present. Okay, फॉर एग्जाम्पल कभी भी पास्ट में कोई भी एक इवेंट हुआ है, उससे आप दिल लगाना, उससे आप जो है ना जज्बात अपने जोड़ाना, दैट इज एन इमोशन। नाउ वो इमोशन आप जितना ज्यादा उससे अटैच करके रहेंगे, उतना ज्यादा इधर पेनफुल और उतना ज्यादा इट विल बी हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इंसिडेंट, पर एक छोटी सी कहानी बोलता हूं मैं इमोशंस को समझाने के लिए। वो एक आदमी था, बिल्कुल मामूली किसान था। वो किसान के पास एक बहुत अच्छा वाइट घोड़ा था, सफेद घोड़ा, हॉर्स। तो एक दफा ऐसा हुआ कि राजा को वहां से जाने का इत्तेफाक हुआ, और राजा ने वो सफेद घोड़े को देखा और कहा कि आई वांट दिस, एंड ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू गो एंड बाय दैट हॉर्स। एंड वो मिनिस्टर गया, जाके बोला कि राजा जी को ये घोड़ा अच्छा दिखा है, सफेद वाला, and he wants to buy it. Tell me how much is the price. So that farmer said that I do not want to sell this. The same has been informed to the king. The king said that okay, ask him that how much he wants. I will pay you, but I want that white horse. He went back and said that I want that white horse. Tell me how much is the price. He said that I will not sell this because this the horse is very much attached to me, and I will not sell it. Then there was a big, huge offer. The king says that I will give half of my property. Give me that horse. And he declined, denied it. Now, after denying it, the whole villagers came to that farmer and said that you are a fool. Why didn't you sell this horse for half of the property of the king? So he said that I am attached to it. Um, don't say me anything whether I'm a fool or I'm a clever. Just I do not want to sell it. What happens is after some days that horse ran away. जैसे ही वो घोड़ा भाग जाता, लोग आते आके कहते कि वाकई में तुम कितने बेवकूफ हो कि तुमने राजा को ये घोड़ा नहीं दिया, ना देने की वजह से आज घोड़ा भाग गया और तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो वो जो फार्मर था वो कहता कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ मैं कुछ नहीं जानता, बस एक मेरे पास घोड़ा था और वो भाग गया, ये रियलिटी। जैसे ही फिर कुछ दिन होते वो घोड़ा घोड़ा जाता है और 12 और घोड़ों को लेके आता है। सो दैट हॉर्स वाज ब्रिंग 12 मोर न्यू हॉर्सेस, सेम लाइक दैट, सेम ब्रीड के, वाइट सफेद वाले। तो लोग कहते हैं कि यार तुम कितने होशियार हो, कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास पहले एक घोड़ा था जिसको राजा खरीदने के लिए आधी सल्तनत दे रहा था, अभी तुम्हारे पास 13 घोड़े हैं, तुम तो बड़े लकी हो। तो वो फार्मर कहता है कि लकी हूँ नहीं हूँ, ये घोड़ा गया है और 12 घोड़े लाया है, यही एक हकीकत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वन फाइन डे इट सो हैपेंड दैट वो जो फार्मर है उसका बेटा वो सफेद वाले घोड़े पे बैठता है और गिर जाता है। गिर के उसकी टांग टूट जाती। जैसे ही टांग टूट गई, सारे लोग आते आके बोलते कि यार ये घोड़ा कितना गंदा है, कितना खराब है, देखो तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई है। फिर ये फार्मर कहता है कि बेटे की टांग टूटी है, ये हकीकत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। घोड़ा अच्छा है, घोड़ा खराब है, आई डू नॉट वांट टू टॉक ऑन दैट। अगेन इट सो हैपेंस दैट वो जो कंट्री होती है वो जंग में आ जाती है, और राजा ने ऑर्डर किया था कि सारे जितने बालिग लोग हैं, दोज हु आर अबव 18 कम, वी हैव टू फाइट नाउ। गांव के शहर के सारे लोग राजा के पास जाके वो सेना में भर्ती होते हैं। नाउ ये बेटा क्योंकि इसके पैर टूटा है तो ये नहीं जा सकता। तो फिर लोग आते आके बोलते कि देखो वो घोड़ा कितना अच्छा लकी था, तुम्हारा बेटा उसके ऊपर चढ़ा और टांग टूटी और वो बच गया, अब हमारे बच्चे गए हैं, वापिस आएंगे नहीं आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन फिर वो फार्मर कहता है कि बच्चे का घोड़े पे चढ़ना, गिरना, टूटना, ये एक इंसिडेंट है, डू नॉट अटैच एनीथिंग टू इट वेदर इट इज गुड और बैड। नाउ here the story ends, and the moral of the story here is okay, anything that happens in your life is an incident। वो अच्छा है बुरा है, ये हम हमारे जो ना एक्सपीरियंसेस से, नॉलेज से, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे इमोशन से जुड़ा देते हैं। जैसे ही कोई एक इंसिडेंट हुआ, अच्छा है बुरा है, वी डू नॉट नो, बिकॉज लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड। जैसा उसका घोड़ा चला गया था, राजा ने आधी सल्तनत देने के लिए रेडी था, सारे लोग ने कहा कि क्या बेवकूफ आदमी है, तुमने नहीं दिया। फिर 12 घोड़े आ गए,
12 घोड़े आते, बोले क्या होशियार आदमी है कि तुमने जो है ना 13 घोड़े हो गए तुम्हारे पास। जैसे ही फिर जो है ना बच्चा गिर गया, सब लोगों ने कहा कि ये घोड़ा तो बड़ा मनहूस है, इसके ऊपर तुम्हारा बच्चा बैठा और गिर गया। फिर जैसे ही वो सारे लोग आर्मी में ज्वाइन हुए, फिर आके बोले कि यार ये घोड़ा तो बड़ा अच्छा है, तुम तो बड़े लकी हो। तो ऑल दिस थिंग्स हैपेंस बेस्ड ऑन अवर इमोशनल कनेक्टिविटी टू सम और द अदर इंसिडेंट, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड इमोशंस। एक इंसिडेंट हुआ है, उस पर आप अपनी फीलिंग्स कितनी उस इंसिडेंट को अटैच करते हैं, दैट इज व्हाट एन इमोशन इज। Let me give you another example. If you have any questions, you can put it on the chat box, or you can unmute and say something, or if you didn't understand anything. Now, emotions जो होता है कोई भी एक इवेंट के ऊपर होता है, and that emotions last only between 1 and 3 minutes. 1 से 3 मिनट से ज्यादा आपका कोई इमोशन नहीं रुकता। मूड अलग है, मूड तकरीबन 3 से 5 घंटे रुकता है। इमोशंस आर बिटवीन जस्ट 1 and 3 minutes, and in this 1 and 3 minutes people make their life and people destroy their life. For example, if you are fighting with your wife or having some argument with your boss, etc on the road, ये 1 से 3 मिनट के ऊपर आपका एड्रेलिन इतना ज्यादा बढ़ गया, आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, आपने कुछ बोल दिया या कुछ हाथ उठा दिया, तो फिर वो चीज बहुत लंबे तक गई। रिसर्च ये बताती है कि जितने लोग आज तक मर्डर किए हैं, जब मर्डर के बाद उनसे जाके हम लोगों ने इंटरव्यू किया, रिसर्चर्स ने, तो उन्होंने बताया कि वी डिडंट वांट टू किल दैट मैन और दैट वुमन, हम उसको मारना नहीं चाह रहे थे, बट वो इतना ऐसा गुस्सा आ गया, इमोशंस हमारे इतने ज्यादा हो गए और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए हम उसको मार दिया। हदीस नबी सल्लल्लाहु ने कहा कि अगर तुमको गुस्सा आए, खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो लेट जाओ, अब पानी अगर पिएंगे तो बेहतर है कि आपका जो इमोशनल है वो लेवल नीचे जाएगा। इमोशंस आर बेसिकली हार्मोन्स, द केमिकल्स दैट इज बीन प्रोड्यूस इन अवर माइंड, ओके, दैट कैन बी गुड, दैट कैन बी बैड। Now, it is your responsibility, it is your job to see how we can play with it. गुस्सा है, अच्छी चीज है, आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो परेशानी, कोई थप्पड़ मार दे तुमको, गुस्सा नहीं आएगा तो बोलेगे यार ये कितना बेगैरत आदमी है। ठीक है। और मोहब्बत है, आपको जताना चाहिए अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे, अपने वालिदैन पे, अपने अड़ोस पड़ोस में, सारे लोगों पे जताना चाहिए। जब आप नहीं जताएंगे तो फिर प्रॉब्लम है। इस्लाम भी इमोशंस को बिल्कुल खुल के बयान करने के लिए काफी उभारता है। एक बेहतरीन हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ बैठे थे और एक दूसरे सहाबी चूंकि यतीम थे और बिल्कुल नौजवान थे, वो जा रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सहाबी जो बैठे और उन्होंने कहा कि "ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बच्चे से अल्लाह की कसम अल्लाह के लिए बेहद मोहब्बत करता हूँ।" अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमने उसको बताया है? उन्होंने कहा कि नहीं। तो बोले कि फौरी जाओ और बताओ। जब तक आप अपने इमोशंस सामने वाले के सामने जाहिर नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो या तो वो इमोशंस अच्छे होके तुम्हारे पास ही रुक जाएंगे और कुछ उसका फायदा हासिल नहीं होगा। अगर आप जब इमोशंस बता देंगे तो अटैचमेंट बहुत अच्छा होगा। तो हमारे इमोशंस जो है वो 1 से 3 मिनट के अंदर होते हैं। अगर खराब इमोशन है तो उसको फौरी आप फिजियोलॉजिकल चेंज, आपकी बॉडीली चेंज जब आप करेंगे तो वो इमोशंस रुक जाएंगे। बेहतरीन वाकया, इमोशंस से ही सारी चीजें जुड़ती है। जैसा कि हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेहतरीन वाकया, वो बाजार में गए और कहा कि हंजला मुनाफिक हो गए। फिर लोगों ने उनको पकड़ के लाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आपके सामने होता हूँ तो मेरा ईमान का लेवल ज्यादा होता है, जैसे ही मैं आपसे दूर जाता हूँ तो ईमान का लेवल कम होता है, तो क्या मैं मुनाफिक नहीं हो गया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो इंसान की होने की अलामत है। अगर तुम, ठीक है, एक ही लेवल पे होते तो शायद फरिश्ते हो जाते। तो हम इंसान हैं, हमारा ईमान का लेवल, कुल जुमा है, हमारा ईमान का लेवल ज्यादा होता है, रमजान में ईमान का लेवल ज्यादा होता है। ठीक उसी तरीके से आपको ये जानना है कि आपके इमोशनल लेवल्स कब पीक पे होते हैं और कब लो होते हैं। यूजुअली नॉर्मली रिसर्च ये बताती है कि लोगों के इमोशंस मगरिब के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे इमोशंस बहुत वीक होते हैं। आदमी बिल्कुल यानी ह्यूमन बीइंग्स, दे आर एट द लोवेस्ट पॉइंट
ऑफ इमोशंस। उस टाइम पे ज्यादातर कोई डिसीशंस ना लें, किसी से कोई इंपॉर्टेंट बात ना करें, बेहतर है उसको अवॉइड करें। क्यों ये है? यूजुअली रिसर्च में ये बताया कि उस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल जहां कहीं भी हो, ऑक्सीजन लेवल आपकी कम होती है, तो ऑक्सीजन लेवल जब ब्रेन तक नहीं जाती तो आप थोड़ा इमोशनली वीक होते हैं। उस टाइम पे आप कुछ भी डिसीजन ना लें। तो इमोशंस कम्स बिटवीन स्टैंड्स between 1 and 3 minutes. In that point of time, something that triggers you is emotions. अब उस टाइम की फीलिंग को अगर आप पकड़ के रखें तो पूरी उम्र चल सकती है, अगर ना पकड़ के रखें तो 3 मिनट के अंदर आपकी बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दावत में गया हूँ और वहां जाकर शायद थोड़ा सा मेरे बड़े भी होंगे, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, शायद थोड़े से बड़े भी होंगे, मैं उनके गले में हाथ डाल के ठहर गया, ठीक है, खाना खाने के बाद, ठीक है, और बिल्कुल 1-2 मिनट के बाद मैं निकाल दिया उनके गले से हाथ, बस हाथ रखा और हाथ ऐसे बस खांधे पे हाथ रखा और निकाल दिया। ये इंसिडेंट हुआ है बिटवीन जस्ट एक एक ही मिनट का। अब वो 1 मिनट में आपके इमोशंस ज्यादा हो गए कि ये कैसे रख सकता है मेरे गले खांधे पे हाथ, मैं इससे बड़ा हूँ, लोग देख रहे हैं, ठीक है, मेरी इज्जत है। तो क्या हुआ, ये सारी चीजें जब आप अटैच करते, ठीक है, तो ये आपकी इमोशनल डिस्ट्रेस होती। आपसे छोटे हैं, शादी का माहौल है, खाना आपने खाया हुआ है, चाय आप पी रहे हैं, आपके कंधे पे अगर वो हाथ रख दे तो क्या क्या ही खराब बात है। अगर आप इसको इस चीज से लें कि वो मेरा छोटा है, वो आया है, अच्छा माहौल है, मेरे खांधे पे हाथ रखा है, ऐसे ही 1 मिनट ठहरा है और चला गया। अगर आप, इफ यू टेक इट दिस वे, द लाइफ विल गो वेरी इजीली। बट इफ यू टेक इट इन ए रॉन्ग वे, अगर आपने इमोशंस को बढ़ा चढ़ा के किया है कि ये कैसे मेरे खांधे पे हाथ रख सकता है जबकि ये मुझसे छोटा है और लोग देख रहे हैं, तो ये 1 मिनट का इंसिडेंट 10 साल, 20 साल, 30 साल पुराना तक भी याद रहेगा। वो 30 साल भी हो जाएंगे तो वो कहेगा कि फलां बिन फलां की शादी में वो इतना छोटा था और मेरे खांधे पे हाथ रखा था, इसीलिए जो है ना मैं इससे नाराज हूं और मुझसे बात नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स हैपन। सो डू नॉट कैरी योर इमोशंस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। If you think whatever has happened to you, if you do not feel good, tell then and there, express yourself. If you do not express yourself then and there, it is like a baggage that you are carrying at the back of you, ठीक है। ये मेरे साथ बदतमीजी किया, ये एक बैगेज, ये मुझे देख के सलाम नहीं किया, ये एक बैगेज, मैं फाइनेंशियली फिट नहीं हूँ, ये एक बैगेज, उसने मुझे देख के अनजान, ये सारे जब baggages when you carry at your back will go bend down. If it is not back, at least I'm saying if it is in your head. So do not attach any emotions towards your life. जो भी आप है जाहिर करें, बोल दें, बता दें। नाउ दिस इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आज के जमाने में आप यकीन जाने कि इतनी ज्यादा हम सोशल नेटवर्किंग और सोशल फ्रेंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। नाउ पीपल आर सफरिंग टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। कोई तो हो मेरी बात सुने, हर कोई चाह रहा है कि मेरी बात सुने, हर कोई चाह रहा है कि मैं बोलूं और लोग खामोश सुने। और ये कंडीशन में क्या हो गया कि एवरीबडी इज विद इन देम, हर जज्बात, हर ख्वाहिश, हर गुस्सा, हर मोहब्बत, हर सरप्राइज, हर चीज, यानी हर चीज जब आप दबा के रखेंगे तो द प्रॉब्लम्स विल कम। नाउ व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट यू विल कम? there is lack of sleep if you hold your emotions, okay, your health will go down, and स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो बिल्कुल कॉमन है। व्हाई? बिकॉज यू डिडंट एक्सप्रेस, आप अपने इमोशंस जाहिर नहीं करे। अब ये इमोशंस अगर आप जाहिर नहीं करे, लोगों को नहीं बताए, ठीक है, उसी टाइम पे फ्लो होने नहीं दिए, तो ये क्या होगा, ये इमोशंस एक डिस्ट्रेस हो जाएंगे। क्योंकि योर माइंड रिलीजेस द केमिकल। जब कभी भी अम, आप रात में गए और कहीं कोई चीज देख ली, दरअसल में जो है ना, अगर जानवर अनवर देख लिया, डॉग वॉग देख लिया, तो आपका माइंड इमीडिएटली
एड्रेनलिन रिलीज करता है और जो है ना दूसरे केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे आपको डर ऑटोमेटिक पैदा होता है। आप ये नहीं कहते कि अच्छा कुत्ता आया है अभी मुझे डरना है और मैं क्यों डरूं, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा कुत्ता है जिसे मैं मार सकता हूं और आगे जा सकता हूं। ये इतना सब माइंड प्रोसेस नहीं करेगा, वो इमीडिएटली जानवर देखेगा और आपको डर वाला जो केमिकल है वो रिलीज करेगा। अब आपके हाथ में है कि उसको कितना कैरी करते हैं। अगर आप उसको तभी का तभी रिलीज करें, पत्थर उठाकर मारें या अनजान कर दें या अपने आप को पावरफुल कर दें, देन होल लाइफ यू विल नॉट फियर। इफ नॉट, वो एक छोटा सा इंसिडेंट आपको जिंदगी भर के लिए आपको कुत्ता और अंधेरे से डराता है। बचपन में यूजुअली ये कहा जाता है, पहले डराते थे कि वी विल क्लोज यू इन द डार्क रूम, अंधेरे में बंद कर देंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज 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 डू नॉट डू दैट, बिकॉज दैट बिकम्स अ फोबिया। उन लोग को फोबिया होगा, फिर आगे चल के ये फोबिया निकालना काफी मुश्किल होगा। निकाल सकते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के जरिए से, बट प्लीज डू नॉट fear, make people make kids fear because of all these things. So emotions निकालना चाहिए। 21 टाइप्स ऑफ इमोशंस है, ये आप देख लें। और अगर ये इमोशंस नहीं निकालेंगे तो आपको डिस्ट्रेस होगा, पेन होगा, तकलीफ होगी। अब वो पेन तकलीफ यहाँ नहीं निकली तो फिर आप कहीं और निकालेंगे। यूजुअली मैंने जो देखा है, सास बहू के जो झगड़े हैं, भाई भाई के जो झगड़े हैं, बचपन में बड़ा भाई छोटे भाई पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, ठीक है, फिर वो जब बड़ा हो गया तो छोटे भाई को जरा पावर मिल गया तो नाउ इट इज सिस्टम ही। वो जानते मूझते नहीं करता कि मुझे बड़े भाई को तकलीफ देना है, बट उसका इमोशनल बैलेंस इतना ज्यादा होता कि वो कैसे ना कैसे निकलता है। सास बहू का भी तकरीबन रिलेशनशिप वैसे ही है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी बोलते हैं कि वो जब बहू थी, उसको इतना टॉर्चर मुश्किल परेशानी देखने पे मिली, तो वो कहीं ना कहीं उसको इमोशनल बैलेंस बन गया। वो जो बैंक बैलेंस कहता है ना, इमोशनल बैलेंस बन गया उसको। नाउ उसकी बहू आती तो वो कहती कि तो हम तो बड़ी मुश्किल से जिए, हम तो बड़ी तकलीफ से जिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल दिस पास्ट इमोशंस comes on the newly wedded wife. So please let the emotion flows so that you should not have distress. अगर आपको डिस्ट्रेस होगा तो फिर तमाम सबसे पहली प्रॉब्लम आपको हेल्थ पे आएगी, इमोशनल डिस्ट्रेस में। ठीक है, वेदर इट्स, आज साइंस ये रिसर्च करके बता दी है कि तमाम तकरीबन तकरीबन आज आज के जितने आप थायराइड ले लें, कोलेस्ट्रॉल ले लें, हार्ट ले लें, किडनी स्टोन ले लें, जितने प्रॉब्लम्स है ये तकरीबन इसकी जड़ स्ट्रेस है। और वो स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि आप इमोशंस अपने जाहिर नहीं करें। नाउ we will see that how we can cope up with the emotions. If you have got any questions, put it on a chat box just for 1 minute on the term of emotion and distress. Now we will talk about what are the emotions and how we can find it out and how we can come out of the distress. If you have got any questions, please put it on a chat box quickly. Emotions के ताल्लुक से, what are emotions and how it is important for us. If anybody is going through emotional distress, please put it on the chat box. If not him, but someone else. Just 1 minute, we will take it. No questions? Okay, let us proceed further. Right. So this is what अभी इमोशंस जो है बेसिकली दे आर बीइंग कैटेगराइज इन 4 डिफरेंट एरियाज। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप को कितना बेहतर जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि 21
27. There are a lot of people has given a lot of theories and the experiments on this, that ये गोल्डमैन वाली जो थ्योरी है वो 21 अगर आप लेंगे तो दैट इज मोर गुड. I will share a small PPT here to see. Right. Okay. Now here are the emotions you can see. There are subjective experience, which is joy, sadness, fear, etc. And there are psychological experience, जैसे ही मैंने कहा कि रात में अंधेरे में आपने कुत्ते को देखा, डॉग को देखा और आप डर गए. जरूरी नहीं है यही हो कि आप अपने घर में भी डर सकते हैं. when you see it is not only in the night but in the day as well. So first one is subjective, which is been joy sad. कोई एकदम पिकाबू करके वो कर दिया तो आप एक सरप्राइज वाला एलिमेंट है वो आपके पास होना चाहिए. That is subjective. Psychological is physiological is that your heartbeat increases, etc. And then expressive is non-verbal communication. जैसा कि आ, with all I'm not saying anything bad, okay, but um, एग्जाम्पल्स वही देंगे तो आसानी से समझ में आता है. कोई रोड पे जा रहा था, आपको कट किया और आपने जो है ना गुस्से में आया और मार दिया. दैट इज एक्सप्रेसिव. एक्सप्रेसिव इमोशंस आपने उसको जाहिर किया. ठीक है. सेम वे द पॉजिटिव इज व्हेन यू फाइंड योर किड गुड, ओके, यू हग देम, यू किस देम, यू टेल देम. बीइंग एक्सप्रेसिव, जैसा मैंने हदीस भी सुना है, यू बीइंग एक्सप्रेसिव सेइंग दैट ओके आई रियली रियली लव यू. अब होता दरअसल ये है क्योंकि हम उनसे अटैच नहीं होते, हम उनको बोलते नहीं हैं. ठीक है. तो फिर बाद में वो कहते हैं कि पापा मेरी सुनते नहीं, पापा मेरी समझते नहीं. ये 0 to 7 years is imprinting period wherein you have to be more physically attached to your kids. Okay. And शादी वाला रिलेशनशिप भी ऐसा होता है कि शादी के कैटेगरीज है. वी विल हैव सम अदर सेशन. तो फर्स्ट कैटेगरी जो शादी में आती है रिलेशन के ताल्लुक से वो फिजिकल है. पहले आप फिजिकल होते हैं, फिर उसके बाद कुछ चंद सालों के बाद आप इंटेलेक्चुअली कनेक्ट होते हैं अपनी वाइफ से. पहले फिजिकली कनेक्ट, चंद साल के बाद इंटेलेक्चुअली कनेक्ट, फिर चंद साल के बाद इमोशनली कनेक्ट होते हैं जब आपके बच्चे बड़े हो गए, वो लोग बाहर ममालिक में चले गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन यू आर इमोशनली कनेक्ट. एंड लास्टली इज a spiritual connect. This is all been connection towards husband and wife a relationship. So expressive, you have to be expressive. आप अपने बच्चों के सामने एक्सप्रेस करें, अपनी वाइफ के सामने, अपनी माँ के सामने, दोस्तों के सामने कि वॉट एवर इट हैज बीन गोइंग थ्रू हियर, especially in our Asian countries, human being and in general, men are not being expressive. क्यों मर्द को दर्द नहीं होता, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे निकाला गया है जिससे हम मर्द इमोशनल होएं और वो रो नहीं पाते, अपनी चीजें जाहिर नहीं कर पाते, in spite of being in some sort of failure or struggling with something, but they cannot express towards the feeling of crying. Why? Because वो कहते हैं कि यार मर्द आदमी के कैसे रोएगा. तो ये हाँ ना होना चाहिए कि आप यू बीइंग एक्सप्रेसिव. ओके. कॉग्निटिव प्रोसेस ऐसा है कि आप एक पुरानी चीज, जैसा मैंने शादी वाली चीज बोली थी आपको, एक पुराना वाकया है जहाँ पे आपको किसी ने हो सकता है वो सामने वाला बदतमीजी ना करते हुए कुछ एक ऐसा इंसिडेंट किया जो आप कैरी ऑन करे और 20-20 साल, 30-30 साल बात नहीं करके, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सिंपल इंसिडेंट. सो डू, if that happens to you, please, as of today, delete it. Okay. If cannot delete it, just talk to that person, say, express your emotions, और ये देखना कि आप कैसे इस चीज से बाहर आते हैं. अगर एक लाइव हमारा अगर कभी सेशन हुआ तो मैं ये इस पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि कैसे आप अपने इमोशंस से बाहर आ सकते हैं. रियाद में हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे लोग धड़ल्ले से रोए, just to express, their emotions, just to have that cognitive
पुरानी थॉट इतनी लंबी खींच के लेके गए और तभी का तभी फोन किया भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को कि भाई फलाना दिन तुमने ऐसे किया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये अगर ना हो तो फिर आप जो है ना मोटिवेशन, जॉय, ठीक है, वाला एस्पेक्ट, मोटिवेशन वाला कैसा होता है कि whenever you are having an examination, whenever you had an examination and you are anxious about getting result, जैसे ही वो आ गया तो आपका मोटिवेशनल इमोशन बहुत ज्यादा होता। कि छह यहाँ पे बेसिकली इमोशंस ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द 21 अगर आप कहें या 27 अगर आप कहें तो दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू इट। व्हाट इज दैट? हैप्पीनेस, जॉय, एंगर, सैडनेस, एंड देन एक्साइटमेंट भी होना जरूरी है। और बीइंग बीइंग इंडल्ज, यू नो, इंक्विजिटिव, आप एक दूसरे से मिल के जुड़ के रहना। दिस आर द 6 बेसिक इमोशंस। नाउ two things which are very very important towards emotions, and we will go it more further to the next slide. Number one, आप सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग इमोशंस वो 21 में से कौन से हैं ये बेहतरीन जाने, ठीक है। और जो वीक है उस पे थोड़ा सा काम करें। जहां कहीं भी ऐसा इंसिडेंट, ऐसा हादसा हो रहा है, आप उससे दूर हट जाएं, छोड़ दें। आप वो जगह छोड़ें या वो चीज को अवॉइड करें, बिकॉज दैट विल स्पॉइल योर थिंकिंग। ओके, सो स्ट्रॉन्ग इमोशन and weak emotion both should be very much clear in your case. Please do it as of today. It is available freely on internet. Strong and weak emotion, that is the homework for you. Now moving on to the next slide. How about distress? Distress is something which happens to your life event or chronic disease, mental health, relationship issues, health issues, and trauma. All this has been discussed. If you have got any questions, you can put it on the chat box. एनीथिंग, रिलेशनशिप का मैंने कहा कि सास बहू के बहुत ज्यादा इमोशनल डिसबैलेंस होता है, जिसमें तकरीबन तो जो है ना, आई वोंट से एक मैन, बट द होल फैमिली सफर्स। सो मेक श्योर दैट इफ यू हैव सम इमोशनल डिसबैलेंस इन द रिलेशनशिप, करेक्ट इट। ठीक है। फिर उसके साथ साथ लाइफ इवेंट्स, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सैडनेस, फियर, एंगर, ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक दे सकती है। नाउ moving, I will just close the share here and राइट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इमोशन। अभी डैनियल गोलमैन का जो हमने किया है, इसने कहा है कि इमोशंस जो है 4 डिफरेंट डायरेक्शन में बने हैं। एक तो आपका सेल्फ इमोशन, कि आप अपने आप को कितना बेहतर जानते हैं, कितना बेहतर वो कर सकते हैं, ये आप इंटरनेट पे देखिए, मालूम है। दूसरा, सेल्फ मैनेजमेंट, जब आपको पता चला है कि जैसे ही मैं घर में आया हूँ, आई डू नॉट लाइक अनक्लीननेस, ठीक है, घर है, थोड़ा बहुत बच्चे चीजें इधर उधर डाले हैं, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने इमोशंस को पहले आप ये जान लो कि भाई मुझे क्लीनलीनेस से एलर्जी है और मुझे गुस्सा बड़ा जल्दी आता है देखते ही। आप पहले ये जान लें, फिर आप मैनेज करने के लिए अपना माइंड प्रिपेयर रहें कि जैसे ही मैं घर जाऊंगा तो ये सारी चीजें शायद वो जो है ना अनक्लीन होगा, एंड नाउ यू हैव टू मैनेज। अभी होता क्या, जैसे ही आप गए और गुस्सा किए और घर में पता चला कि जो है ना अब्बू जी आ गए और वो गुस्सा हो गए, एंड द सेम गोज विद द वुमेन एज वेल, ठीक है। अगर आपको पता चला कि यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द किचन और टू मच टाइम एट द वर्क और टू मच टाइम ऑन द किड्स, प्लीज 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 वो इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा सा आप दूर करें, ठीक है। और अपने आप को देखें बेहतर, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को देखें और उसको देखें कि आप कैसा बेहतर मैनेज कर सकते हैं, वो इमोशनल को पास कैसे कर सकते हैं, बता कैसे सकते हैं, आइदर थ्रू यू टॉकिंग टू समवन, ओके, टॉकिंग टू द काउंसलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पहला है आपको सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर इमोशन विच इज द स्ट्रॉन्ग इमोशन। सेकेंड, उसको आप कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं वो देखें। तीसरा जो है
ठीक है, लोगों के इमोशंस कैसे होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के इमोशंस कैसे होते हैं, और फिर उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप अपने आप के बारे में बेहतर जानते, आप अपने आप को मैनेज कर ले, बट सामने वाला नहीं मैनेज करता, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ इट इज, ही इज, ठीक है, और शी इज। फिर उसको, वो चीज को आप अवॉइड करें, छोड़ दें। आजकल हमारे पास तो बिल्कुल फोकस डिविएशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कोई एक चीज पे ज्यादा फोकस ना करते हुए आप सामने वाले को ये समझ जाएं कि ये इसके इमोशंस यहाँ पे स्ट्रांग है, और आप पीछे हट जाए। जैसे ही आप पीछे हट जाएंगे, ठीक है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। पहले अपना इमोशन समझे, अपने इमोशंस को मैनेज करें, फिर दूसरों का इमोशन समझे, ठीक है, दूसरे दूसरे यानी जो कोई भी आपसे इर्द गिर्द है। वाई? बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर फुल्ली अटैच विद इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, ये फोन है, मैं इसे इधर उठाऊं, उधर रखूं, फेंकूं, कुछ भी करो, ये पलटा के नहीं बोल सकता कि व्हाई यू 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 डिड लाइक दिस टू मी। बट अगर मैं किसी इंसान को कहूँ भैया यहाँ नहीं ठहरो और वहां ठहरो, तो वो फिर कहेगा कि भाई मुझे क्यों बोला, अभी क्यों बोला, क्या मैंने कुछ गलत किया? और ये हमेशा मुझको ऐसे ही बोलता है। वाई? बिकॉज आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, दैट इज वाई ही सेड लाइक दिस। क्या कहा मैंने? जस्ट मैंने कहा कि थोड़ा सा हट के कहो, हट के ठहरो। जैसे ही इतनी छोटी सी बात कही, वो फिर तमाम चीजों को इमोशनल बैलेंस लंबा लेके गया। ठीक है, ऐसा ना करते हुए आप सामने वाले को देखें कि ये, इसको यहाँ पे इमोशनली ये बंदा यहाँ पे वीक है, और उसको आप मैनेज करें। ठीक है, बी इट योर बॉस, बी इट योर वाइफ, बी इट योर नेबर्स, बी इट समवन एल्स। ठीक है, अगर उसको आप नहीं बैलेंस करें, अगेन एंड अगेन इट विल हैविंग अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं ना, बार बार आप आपके आपके माइंड में वो छुपता रहेगा, वो सामने दिखता रहेगा, आपको तकलीफ होती रहेगी। दीज आर द फोर बेस्ट एरियाज। अब ये दोनों को मिलाकर अगर आप एक शॉर्ट में कहते हैं, तो कहें तो कहते हैं कि एम्पथी। एम्पथी दैट मीन्स बीइंग, थिंकिंग, बीइंग इन द अदर्स शूज। वो वहां हो, अगर मैं वहां होता, तो मैं कैसे सोचता, मैं कैसे करता। लेट मी गिव यू अ स्मॉल डिस्क्लेमर हियर। मैं जितने बातें कह रहा हूं, ठीक है, शायद वो जिंदगी के हर कोने में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। ये मैं इस पे सेशन भी करता हूँ, और वहां पे क्लियरली बताता हूँ कि वी कैन नॉट बी रैशनल ऑल द टाइम। हम कैलकुलेटिव नहीं रह सकते। ठीक है, इसीलिए जितने बातें मैं कह रहा हूँ हर टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट मेक श्योर दैट यू ट्राई टू डू इट। बेहतरीन इसका एग्जाम्पल वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला। जैसे ही थोड़ा सा वो डॉक्टर अस्थाना होता, जैसे ही थोड़ा सा हा 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 हंसता है, और जो और अपने आप को कहता है कि हाँ, रिलैक्स, वो दैट लुक्स फनी, बट दैट इज हाउ इट इज। वो फिर लाफ्टर थेरेपी में, पार्क में जाता है और लाफ्टर थेरेपी करता है। दैट इज हाउ ही इज एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस। अगर वो ना करें, ठीक है, तो फिर आपको तकलीफें होंगी। तो ये जो दो है कि लोगों का इमोशंस और लोगों के इमोशंस को मैनेज करना, ठीक है, इसे कहते हैं एम्पैथी। सामने वाले के शूज में भी आप जाकर देखें कि मैं इसकी जगह होता तो शायद क्या ऐसे ही करता। यू नेवर नो व्हाट समवन एल्स इज गोइंग थ्रू। अगर आप रोड पे जाकर देखें, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट होता है और वो, उसकी दुनिया पूरी खराब हो गई वहां पे, और 2 मिनट के बाद वही रोड पे देखें, लोग भगाते हैं, ठीक है, तेज जाते हैं। So why? Because everybody is living in their own world, and in this own world, they have got their priorities, their importance, okay, their liabilities, etc., etc. So you, as a matured person, जब आपको पता है, आप ये देखें कि how we can help, okay, how we can have this empathy, how we can live our life, how we can have our emotions better by standing at there। वो 6 और 9, 6 एंड 9 का किस्सा तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अगर से मैं देखूं तो वो 9 है, अगर वहां से देखूं तो 6 है। नो वन इज रॉन्ग, इट इज जस्ट द वे यू लुक एट थिंग्स। वॉरेन डेयर ने कहा कि इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक चेंजेस। सेम वे, अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज करें,
आप लोगों को इमोशंस को देखें और उनके हिसाब से करें, चलें थोड़ा टाइम, ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल लाइफ बहुत आसान होगी। आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, आप इमोशनली डिस्ट्रेस नहीं रहेंगे। जब आप इमोशनली डिस्ट्रेस नहीं रहेंगे, देखिए दुनिया में जितनी चीजें हैं वो आनी और जानी है। पैसा आज शायद आपके पास नहीं है, कल आ जाएगा। हेल्थ आज आपके पास नहीं है, शायद कल आ जाएगी। ये क्यों आएगी? वेन एवर यू आर इमोशनली स्ट्रांग। जितने लोग आप दुनिया में देखें, जो humanly it is not possible for someone to walk on a small piece of nacre, just एक चड्डी पे वो हिमालय पर्वत चढ़ गया, विम हॉफ। इट इज humanly not possible, but he did it. How? Because he is emotionally, his mind, he made his mind strong. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, वो तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, बट माइंड को इतना अच्छा ट्रेन किया, अपने इमोशंस को इतने अच्छे बैलेंस किए, वो ह्यूमनली पॉसिबल है। तो प्लीज डू नॉट कम इन द डिस्ट्रेस। एंड इन द लास्ट few minutes I will say that if God forbid, if you are in इमोशनल डिस्ट्रेस, अगर आप इमोशनली परेशान हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? जैसा मैंने बोला कि जो चार चीजें हैं डैनियल गोलमैन के इमोशनल के हिसाब से, वो आप देखें, अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या है चेक कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इमोशनली परेशान है कोई भी चीज को लेके, आप वो चीज देखें कि क्या वो चीज आपको ट्रिगर कर रही है। कोई भी एक पास्ट इंसिडेंट और पास्ट इवेंट that has triggered you to become emotionally weak। वो लोग यानी कोई गाना हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई वर्डिंग्स हो सकते हैं, कोई चीज हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीथिंग दैट इज ट्रिगरिंग यू टू बिकम इमोशनली वीक या परेशान हो रहे हैं, प्लीज फाइंड इट आउट दैट एंड अवॉइड इट। एंड मैं एक अच्छी बहुत बिल्कुल मैं मुखलिस होके दिल से कह रहा हूँ कि ये जो इमोशनल वाला चक्कर है ना, ठीक है, नो वन कैन फाइंड आउट। और आज तक की जितनी रिसर्च हुई है, थोड़ा थोड़ा यानी आप यू विल अंडरस्टैंड इट, बट मेरे वर्षा का फोन हाँ वो दोस्त से बात करने से क्या है वो आधा घंटा का मैक्सिमम आज तक मैं किससे फोन आया 2 घंटे आने वाले बातें करने अ, बच्चे क्या कर रहे हैं देख रहे नहीं कर रहे नहीं और बच्चा सो जा रहा खाया नहीं कुछ भी मुझे after 3 minutes we will take the question and answers. Okay, as of now just mute it for a while. आप ये देखें कि आपको कौन सा इमोशन आपको ट्रिगर कर रहा है, उस इमोशन को आप बिल्कुल जानिए। और अगर कोई इमोशन आपको सता रहा है, भाई एमबीबीएस का एक सीन कहा था कि उसको आप करें, आप अपना इमोशन जाहिर कर दें। और चौथी चीज ये है कि अपनी अपनी सेहत का, अपने इमोशन का पर्सनली ख्याल रखें। द बेस्ट थिंग टू डू to come out of emotional vent is ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आप अकेले में जाएं, ठहरें, चीखें, चिल्लाएं, बोलें, अगर आप किसी को बता नहीं सकते, बराए मेहरबानी प्लीज अपना सेल्फ केयर रखें। जितने ज्यादा लोग, मैं कोचिंग करता हूँ, जितने ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है, वो इमोशनली वीक होकर ही फाइनेंशियल डिसीजंस खराब लेते हैं, इमोशनली वीक होकर ही। अब देखिए, जितने जितने लोग काफी सारे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस में हुए, आप उनको अगर नॉर्मल टाइम पे बोलेंगे तो ये बेवकूफाना हरकत तो मैं कर ही नहीं सकता, बट इमोशनली वीक होके उन्होंने किया है। कैरियर में इमोशनली वीक होके आपने वो ऐसे काम जो ना चाहते हुए भी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। व्हेन आई से हेल्थ, इट इज मेंटल एंड फिजिकल बोथ। इमोशनल तो उसमें मेंटल में ही आ जाएगी। आप अपने आप को देखें, आज के टाइम पे सबसे, अगर किसी के पास अच्छी हेल्थ है तो उससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं है। अभी रिसेंट में एक दो दिन में आपने देखा होगा कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगेन वी आर ऑन द सेम लूप ऑफ हेल्थ इज बीइंग इम्पोर्टेंट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हेल्थ। और लास्टली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज की सपोर्ट हो, अगर चाहिए सपोर्ट, तो प्लीज टॉक टू अस। वी आर गिविंग यू लाइव
45 minutes free session if you are going with any mental stress, emotional distress. प्लीज आप ये नंबर नोट करें, 45 मिनट्स का मेरे साथ बैठें, फ्री सेशन है, ठीक है, वेयर इफ यू आर वी विल फाइंड इट आउट that what is triggering you to become emotionally weak, what is stopping you to be emotionally expressive, how you are not making a bond of people with the people, how your relationship can be become more better, how your finances can be more better just by taking care of your emotions. So with this, we will take one or two questions and then we will end up this session. So today's session was emotional distress, how you can manage your emotion and become a very good human being, not only by us, not only by managing our own emotions, but by managing with other people as well. Islam, bilkul, मैं अगर if I go on the religious perspective, again half an hour I can talk about where and how Islam taught us to be emotionally safe, emotionally powerful. Do you have any questions? We will take it up, or we will end the session in just 1 minute. If you want to have a free session, okay, here is the number. You can talk to me, and we will have a very good, emotionally balanced life. There is no question, so we will end up this session. Shukriya, thank you, Jazakallah khair for joining on this Thinkful Thursday weekly webinar. We will have another session next Thursday at the same time. Looking